Good morning, students. Today we will start the remaining portion of the chapter craft. So, all of you, please open page number 122. Okay, now first I will read and then I will explain. So, 100 page number 122. Now, if you listen carefully, you can hear the chip 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 of an axe on wood. Follow the sound. Go up the rocky path between the thatched houses with their walls of red mud and past some tethered bullocks. As the sound gets louder and you come round the concern of a broken wall, you will see Gurappa. Now I will explain this paragraph. Now I'm going to explain this paragraph. In this paragraph, writer is saying if you concentrate, you can hear the sound, typical sound, or you can say typical sound of cutting woods, an X by an X. It sounds like chip chip. It means here chip chip is the sound of a cutting sound of a wood. If you follow the direction of sound or path which goes through a stony path, you reach to thatched, that is कच्चा हाउस. thatched means कच्चा हाउस या घास फूस से जो छत वाला घर हाउस. The roof are made of grass and wall are made of mud. Behind these houses, bullocks are tied with ropes. As soon as you come closer to the sound chip chip chip, you will see a broken wall of Gurappa. Gurappa here is a man. Okay, here Gurappa is a man. Now I will explain you this in Hindi. In this paragraph, इस पैराग्राफ में राइटर ने जो चिप चिप साउंड है वो किसके लिए बताया है, जो वुड कट होती है उसके लिए बताया है. उसमें बोला है कि अगर तुम ध्यान से सुनोगे, इफ़ यू लिसन केयरफुली, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम सुनोगे कि कोई एक्स से, कुल्हाड़ी से वुड को काट रहा है. और जब वो वुड को काट रहा है तो उसकी कैसी आवाज़ आ रही है, चिप चिप चिप. इफ़ यू फॉलो द साउंड, अगर तुम उस साउंड को फॉलो करोगे तो वो तुमको कहाँ तक कैसे ले जाएगी, गो अप टू द रॉकी पाथ. मतलब वो तुमको पहाड़ों से होके, पत्थरों वाले रास्ते से होते हुए तुमको ऐसे घर तक ले जाएगी जो घास फूस का बना है. थैस्ड हाउसेस मतलब घास फूस से, लॉन्ग ग्रासेस से जो बने हुए होते हैं, स्ट्रॉ से, उस घर की तरफ ले जाएगा. और उस घर का जो उसकी दीवार है वो किससे, रेड कलर की मिट्टी से बनी हुई है. ठीक है, और मतलब उसका जो छत है वो घास फूस से बना हुआ है और जो उसकी दीवार है वो रेड कलर के मिट्टी से बनी हुई है. एंड पास सम टीथेड बुलक्स, और वो बोल रहा है कि वहाँ पे आप देखोगे, टीथेड मतलब किसी चीज़ को रोप से टाई करना, तो आप देखोगे कि वहाँ पे किसी बुलक्स को मतलब जो ऑक्स के पेयर्स होते हैं उनको घर के पास में बांध रखा है. एज द साउंड गेट लाउडर, जैसे जैसे साउंड तुम पास आते जाओगे जो साउंड है वो क्या होती जाएगी, और लाउडर मतलब तेज होती जाएगी. एंड यू कम राउंड द कॉर्नर ऑफ अ ब्रोकन वॉल, और जैसे ही तुम उस हाउस की ब्रोकन वॉल तक पहुँचोगे, टूटी हुई दीवार तक पहुँचोगे, तो तुम क्या देखोगे, यू विल सी गुरप्पा. तो तुम देखोगे वहाँ पे एक गुरप्पा नाम का आदमी बैठा, एक गुरप्पा नाम का आदमी है. ठीक है. Okay, now second paragraph. He is sitting on the ground. By his side are some logs of wood which he brought yesterday from the forest. They are freshly cut and wet with sap. Guruppa has already sawn the logs into sections about 12 centimeter long. Now he is using an adze to split them into thin pieces about 1 centimeter thick. You can smell the new wood
You can imagine Gurappa's days in the forest. Now here I'm going to explain this in English. Gurappa is sitting on the ground beside the heap of a wooden log brought from the forest a day before. The wood are wet. Okay, the wood are wet and having sap, which is proving that it is freshly cut. Gurappa has made the 12 centimeter long log pieces of woods with the help of saw. Now he is making pieces with help of axe, which is only 1 centimeter in thickness. The smell of sap, that is wood, is indicating that it is a new wood or fresh wood. It means wood is indicating that it is a new wood और a fresh wood means ताज़ा कटी हुई लकड़ी गीली होती है और उसमें से खुशबू आती है. ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जो wood है वो बता रही है that you can imagine that Gurappa days in the forest. Okay, now I am going to explain this in Hindi. He is sitting on the ground by his side some और आप तुम देखोगे कि जो गुरप्पा है वो ही किसके लिए यूज़ हुआ है, गुरप्पा के लिए. गुरप्पा ज़मीन पे बैठा हुआ है, बिसाइड बाय हिज साइड मतलब उसके बगल में, गुरप्पा के बगल में लकड़ियों का खूब ढेर सारा इकट्ठा करके रखी हुई है. लॉग्स ऑफ वुड मतलब एक वुड के लॉग्स रखे हुए हैं. विच ही ब्रॉट यस्टरडे, और जिसको वो कल फॉरेस्ट से कट करके लेके आया था. विच आर फ्रेशली कट एंड वेट विथ स्वेप, जो अभी ताज़ा ताज़ा ही कटी थी, जो उसने कल ही काटा था वो अभी ताज़ा ताज़ा ही कटी थी. और उसमें से सैप मैंने बताया था वाटरी लिक्विड, अभी भी टपक मतलब वाटरी लिक्विड था उसमें, जिसकी वजह से लकड़ी हल्की सी गीली थी. विच वॉज फ्रेशली कट एंड वेट विथ स्वेप, स्वेप से गीले थे. Gurappa has already sawn the logs into sections about 12 centimeter long. गुरप्पा ने जो लॉग्स थे उनको कुल्हाड़ी से 12 सेंटीमीटर लंबी सेक्शंस में डिवाइड कर दिए थे. अब नाउ ही इज़ यूजिंग एन एक्स, एक्स मीन्स एक्स टू स्प्लिट. अब उसको स्प्लिट मतलब अलग अलग करना. नाउ ही इज़ यूजिंग एक्स, अब वो एक्स यूज़ कर रहा है उन पीसेस को अलग अलग करने के लिए. और अब उसको जो पीसेस थे उनको अब वो 1 सेंटीमीटर थिक में कट करेगा. और जो ताज़ी लकड़ी होती है उसकी जो स्मेल होती है, उसके स्मेल से पता चल जाता है कि ये लकड़ी नई है और ताज़ी है. यू कैन स्मेल द न्यू वुड, और आपको उस नए वुड की खुशबू आने लग जाती है. यू कैन इमेजिन गुरप्पाज डेज इन द फॉरेस्ट, और इससे आपको पता चलेगा गुरप्पा का दिन फॉरेस्ट में कैसा रहा. ओके, नाउ द थर्ड पैराग्राफ. Up before dawn, Gurappa takes his curved knife and a little food item up in a cloth and starts off along the path. He walks for an hour until he finds the kind of trees he wants. Only certain parts of those trees are useful for his work. He climbs the tree and cuts branches. He works hard all day. He cuts some creepers and ties his wood into a bundle. The sun being to go down behind the hills as Gurappa returns with his load of wood. Now, in third paragraph, author is again telling the daily routine of Gurappa. Here, Gurappa wakes up before dawn, okay, takes his wood cutting tools and little food which is tied in cloth and move out on the path which goes into forest for hours till he reaches or find the type of tree which he requires. Okay, he don't require complete tree, only some branches or part of the tree is useful for him. He asks to identify the branches, climbs on the tree, cut those branches.
He also cut some creepers. Creepers means बेल या लता जो होती है, जो पेड़ पे चढ़ती है, and uses them as rope to make bundles of woods. In the evening, as soon as the sun starts setting down behind the hills, Gurappa used to return to village with his bundle of woods. Okay. Now in third paragraph, just अब बिफोर द डॉन, सुबह होने से पहले ही, डॉन मीन्स सुबह होना, सुबह मॉर्निंग का टाइम जो होता है, तो सुबह होते ही, जो सुबह होने से पहले ही जो गुरप्पा था वो उठ जाता था. वेकअप मीन्स उठ जाना. और वो अपने साथ में जिस हथियार से, जिस टूल से वुड्स को कट किया जाता था वो उनको ले लेता था, और कुछ खाने का सामान एक कपड़े में बांध के ले लेता था. एंड मूव आउट ऑन द पाथ विच गोज इनटू द फॉरेस्ट. और उस रास्ते पे चल पड़ता था जो फॉरेस्ट के रास्ते पे था, जिससे जो फॉरेस्ट की तरफ जाता था. और करीब 1 घंटा चलने के बाद वो उस जगह पहुंचता था जहाँ पे उसको उस तरह की लकड़ियाँ मिलती थी जैसे उसको चाहिए होती थी. ठीक है. उसको पूरी की पूरी ट्री नहीं चाहिए होता था, ओनली उसमें से, उस ट्री में से ओनली उसको कुछ ब्रांचेस या उस ट्री का कुछ पार्ट चाहिए होता था. ठीक है. मतलब उस पूरी कंप्लीट ट्री नहीं, ट्री का कुछ पार्ट ही उसके लिए यूज़फुल था, गुरप्पा के लिए यूज़फुल था. वो उन ट्रीज़ को पहचानता था. ही यूज टू आइडेंटिफाई द ब्रांचेस. उन ब्रांचेस को पता करता था कि उस ट्री की ब्रांचेस में से कि कौन सी ट्री उसके लिए यूज़फुल है. फिर उन पेड़ों पे चढ़ के उन ट्रीज़ की ब्रांचेस को कट करता था. वो कभी कभी जो मतलब क्रीपर्स होते हैं, जो क्रीपर्स मीन्स जो बेल होती हैं, जो लताएं होती हैं जो ट्री पे चढ़ती हैं, कभी कभी वो उनको भी कट करता था. और वो क्यों कट करता था? उसको वो लकड़ियों का जो बंडल होता था, जो लॉग का इकट्ठा करके रखता था, उसको बांधने के लिए, उन क्रीपर्स को बांधने के लिए यूज़ करता था. और फिर इवनिंग में जब सन ढलने लग जाता था, द सन सेट्स, फिर इवनिंग में जब सन ढलने लग जाता था तो फिर वो क्या करता था, गुरप्पा यूज टू बिहाइंड द हिल्स, गुरप्पा यूज टू रिटर्न टू द विलेज विद द बंडल्स ऑफ वुड. जैसे जैसे जब सन धीरे धीरे पहाड़ी के नीचे आने लग जाता था, मतलब डूबने लग जाता था, तब गुरप्पा जंगल से अपने विलेज की तरफ वापस जो वुड्स का बंडल था उसके साथ में वापस घर को आता था. ठीक है. नाउ that is how he gets his raw material. And now as we sit watching him, he has finished splitting the wood into flat pieces. Then he chopped with an adze until the opposite edge of the pieces of wood are sharp. Means here these woods are raw material for craft items, and he already cut into flat wooden pieces. After this he had sharpened the opposite edge with the help of axe. Now इसमें क्या है, जो वो वुड काट के लाता था, वो वुड उसको क्राफ्ट के आइटम बनाने के लिए, क्राफ्ट मतलब जो मैंने आपको बताया था कि क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आइटम जो स्किल ढंग से बनाई जाती हैं. तो उन आइटम्स को बनाने के लिए वो लकड़ियों को लेके आता था, और वो लकड़ियाँ उन आइटम्स को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ की जाती थी. वो क्या करता था, ही ऑलरेडी कट इनटू फ्लैट वुडन पीसेस. उनको पतले पतले वुडन पीसेस में वो क्या करता था, उनको कट कर देता था. एंड आफ्टर दिस ही हैड शार्पन द अपोजिट एज. और फिर जो उसकी दूसरी साइड थी उनको भी खूब अच्छे से शार्पन मतलब तेज कर देता था. ठीक. विद द हेल्प ऑफ अपने एक्स से जो उसकी दूसरी साइड होती थी उनको भी खूब अच्छे से शार्पन कर देता था, मतलब उनको भी चिकना कर देता था, तेज कर देता था. ठीक है. नाउ डू यू नो, now I'm going to read the paragraph. Do you know what he is making? Can you guess? You ought to know by now. If you cannot guess, you should watch what he does next.
When he has cut 20 or 30 flat pieces of wood, he put one on a wooden support and hold it tightly with his foot. Then he take a tiny saw and start to cut the teeth of the comb. Yes, he is making the wooden comb, which you can find in the corner of any market. He cuts the teeth from one side and then turn the comb over and make a second cut from the other side. Okay, now I'm going to explain these paragraphs. Can you guess by seeing the image given on page number 122 what Gurappa is making? Those who could not understand, let us see what he is doing next. After making almost 20 to 30 flat pieces, he took one piece and kept it on the wooden plank. Wooden plank means जो लकड़ी का फट्टा होता है, and hold it with his both legs. You can see his activity in picture or image which is given on page number 122. Now, with the help of small saw, he started making teeth of comb. Now, I hope all of you understand that Gurappa is making wooden comb which is available in the market. Okay. Now, I am going to explain this in Hindi. Here, these woods. Here the writer is asking that can you guess. यहाँ पे राइटर पूछ रहे हैं कि क्या तुम गेस कर सकते हो इमेज को देख के जो पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 122 पे कि गुरप्पा क्या बनाने जा रहा था, गुरप्पा क्या बना रहा था. Those who could not understand, जो नहीं समझ सकता है वो अब देखेगा, अब मतलब इसमें पता चलेगा पढ़ के कि गुरप्पा क्या बनाने की कोशिश कर रहा था. आफ्टर मेकिंग ऑलमोस्ट 20, जब उसने देखा 20 to 30 फ्लैट पीसेस गुरप्पा ने निकाल लिए, वन पीस 20 to 30 पीसेस ऑफ फ्लैट प्लैंक. ही टुक वन पीस एंड केप्ट इट द वुडन प्लैंक. उसने फिर उस वुडन प्लैंक पे वो 20 से 30 पीसेस को वहाँ पे निकाल के वहाँ पे रख दिया. एंड फिर उनको दोनों पैर से पकड़ के, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि उसको दोनों पैर के नीचे दबा के द वुडन प्लैंक जो था ही होल्ड इट विथ हिज बोथ लेग्स. जो वुडन प्लैंक था उनको दोनों लेग्स से होल्ड करके, और आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो कि गुरप्पा क्या कर रहा है. गुरप्पा उनकी हेल्प से, वो स्मॉल सॉ की हेल्प से, छोटे छोटे औजारों की हेल्प से वो टीथ जो कॉम्ब होता है, जो कंघी होती है उसके जो टीथ होते हैं, जो शार्प एजेस होते हैं जिससे हमारे हेयर कॉम्ब होते हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहा था. जो वुडन कॉम्ब सब जगह मार्केट में क्या होती है, अवेलेबल होती है. ठीक है. सो इसमें दिया है कि अगर आप पिक्चर में देख के नहीं समझ सकते, डू यू नो व्हाट ही इज़ मेकिंग, क्या तुम्हें लग रहा है कि वो क्या बना रहा है. कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो. यू ऑट टू नो बाय नाउ, क्या तुम ऐसा समझ सकते हो. इफ़ यू कैन नॉट गेस यू शुड वॉच वॉट ही डज नेक्स्ट. अगर तुम नहीं समझ पाए गेस देख के पिक्चर, तो तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या बना रहा है. व्हेन ही हैज़ कट 20 और 30 फ्लैट पीसेज ऑफ वुड, जब उसने फ्लैट मतलब समतल, बराबर, है ना, वुड का, लकड़ी का 20 से 30 फ्लैट पीसेस निकाल दिए उसने. ही पुट वन ऑन अ वुडन सपोर्ट एंड होल्ड इट टाइटली. उसको एक लकड़ी के फट्टे पे रख के और उसको खूब टाइटली होल्ड कर लिया, पकड़ लिया. विथ हिज फुट, अपने पैरों की हेल्प से उसके ऊपर दो पैर रख के उसको टाइटली होल्ड कर लिया. अब उसने क्या किया, देन ही टेक अ टाइनी सॉ एंड स्टार्ट टू कट द टीथ ऑफ अ कॉम्ब. उसने फिर छोटा सा सॉ लिया, हथियार लिया. सॉ मतलब जिससे हम लकड़ी को घिसते हैं, उसको लिया और उसने कॉम्ब के टीथ को बनाना शुरू कर दिया. ठीक है. यस, ही इज़ मेकिंग वुडन कॉम्ब. हाँ, वो वुडन कॉम्ब बना रहा था. विच कैन फाइंड इन द कॉर्नर ऑफ एनी मार्केट, जिसको हम मार्केट के किसी भी कॉर्नर पे हमें वो मिल सकता है. ही कट द टीथ फ्रॉम वन साइड
one side and then turn the comb over and make a second cut from the एक साइड से बनाता था, फिर उस कॉम्ब को टर्न करता था उस वुडन प्लैंक को, और फिर दूसरे साइड से भी उसका कॉम्ब के टीथ बना रहा था. ओके, so I hope this whole page is clear to all of you. So till then revise it, and if you people are having any problem, just tell me that you are having this problem, or you are having any this sort of problem, then I will sort it out in your class. Okay, till then revise it.